Now trial balance, credit side. Capital accounts we have written, current accounts we have written, interest on drawings calculated, loan of Harsha written. Next is given rent on credit side. So you write as an income on PL account credit side because it's given credit side, and the amount is of rent, it's given rupees 12,000 rent as an income. Next is given creditors. Creditors means current liability. Okay, creditors 5,000. This is your current liability. Then trading account. It's given on credit side, so write in trading account as balance brought forward 24,700. Okay. Balance sheet. Say sorry, trial balance to trading account. Then bank balance. Bank balance is your current asset. But sorry, it's given on credit side, so it's BOD. Actually, bank balance is your asset, but if it is given in credit side, so it becomes liability. So that means it's BOD. That is 5450. Okay. Then interest on current account Harsha that we have recorded, and then here in the textbook it's given suspense account rupees 300. Okay. So first we are tallying the balance sheet. Okay, if without suspense account, if it is getting tallied, then no need to write the suspense account. Suspense account is used temporarily to tally the balance sheet, to tally the trial balance. Okay, but let's check our sum. Agar tally ho jata hai, then no need to write the suspense account. Okay, so trial balance के भी effects हो गए, adjustments के भी हो गए. Now let's close the sum from trading account. Revised trading account, as you can see on debit side, on nothing credit side, if you will do the total, it will be 25,000. Okay, total. यहाँ कुछ भी नहीं है. Now credit side's total is more. That means it's profit. Write as gross profit. कितना? Full 25,000. Close it. Okay. From debit, transfer here to the credit side in PL account 25,000. Now do the total 25,000 plus 12,000 यानी credit का total करो और debit का total करो, and then find the difference, find the balance. अगर आपका difference balance debit side आता है then it's a profit. अगर आपका difference credit side आता है then it's the loss. So यहाँ पे हमारा difference debit side आ रहा है, then we call it as net profit 17,700. Okay, 4,300, 12,000, 1,300 and 1,700. ये सब टोटल करके यहाँ से माइनस किया. 17,700 is your answer and grand total. Okay, हो गया. ट्रेडिंग से आंसर पीएल में आया और पीएल से जाएगा पीएल एप्रो में. कहाँ पे? अपोजिट साइड बाय नेट प्रॉफिट, दैट इज ट्रांसफर किया. इवन हियर यू डू द टोटल. ओके, दोनों साइड का टोटल करो. अगर आपका डिफरेंस क्रेडिट साइड आए देन इट्स लॉस, अगर डेबिट साइड आए तो प्रॉफिट. यहाँ पे भी इसी साइड आ रहा है, सो इट्स प्रॉफिट. पीएल एप्रो के आंसर को हम क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल बाय बिकॉज यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन द पार्टनर्स. कितने पार्टनर्स हैं? 2. जितने हों उनमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, हर्षा एंड छाया. ओके, नाउ you have to check the question. If the PL ratio is given, that in that ratio you have to distribute the profit. यहाँ मैंने क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया ना, तो फाइनल आंसर मेरा आ रहा है 8,000. बट ये 8,000 जितने पार्टनर्स हैं उनमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, लाइक इन दिस क्वेश्चन इट्स नॉट गिवन, सो सपोज 50-50, हाफ हाफ, इक्वल, 8,000 का आधा आधा, कुछ नहीं बोला है तो. Okay, and then do the total. ये total grand total complete कर दिया. Okay,
ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल का नेट प्रॉफिट, पीएल एप्रो का डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल मीन्स डिवाइड इट इनटू द पार्टनर्स. अब यहां से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? पीएल एप्रो से यहाँ कैपिटल, यहाँ करंट में, यहाँ तो करंट है तो करंट में आते हैं अपोजिट साइड फ्रॉम प्रॉफिट डेबिट साइड टू क्रेडिट साइड विद द लास्ट. ओके, जनरली ओपनिंग बैलेंस इज विथ ओपनिंग डेट. अगर किसी की डेट दी हुई है तो वो, अदरवाइज यू हैव टू राइट द क्लोजिंग डेट ऑलवेज. बाय divisible profit 4000 and 4000 equal. Okay, now close, do the total. Okay, पहले हम हर्षा का लेते हैं. ओके, इसमें भी आप ऐसे करो, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करो और देखो किस साइड बैलेंस आ रहा है. जब मैं हर्षा का टोटल कर रही हूं तो डिफरेंस मेरा आ रहा है क्रेडिट साइड. बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एज इट्स अ क्लोजिंग बैलेंस. एज यू कैन सी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड. ओके, आंसर इज 7250 and the total will be 11,550. इसको क्लोज कर देते हैं. ओके, अब छाया का देखते हैं. तो छाया का जो आंसर है वो भी डेबिट साइड ही ज्यादा है. ओके, छाया का जो डेबिट का टोटल किया और क्रेडिट का टोटल किया तो डेबिट का टोटल ही ज्यादा है, यानी डिफरेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड, एंड इट विल बी 700. जरूर नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट कंपल्सरी कि आपका आंसर एक ही साइड है. हो सकता है किसी पार्टनर का आंसर डेबिट साइड है, किसी पार्टनर का आंसर क्रेडिट साइड है. ओके, जिस साइड है, बट यहाँ दोनों का डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड. दैट मीन्स कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट का टोटल ज्यादा, तभी तो आंसर किस साइड आया? क्रेडिट साइड आया ना. यानी इसका मतलब है कि ये डेबिट बैलेंस हुआ. भले आपको दिख रहा है बैलेंस क्रेडिट साइड, बट क्रेडिट साइड बैलेंस क्यों आया? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है. सो वी कॉल इट डेबिट बैलेंस, एंड डेबिट बैलेंस मीन्स एसेट. सो ट्रांसफर ऑन विच साइड? एसेट साइड. गिव द हेडिंग current assets, sorry, it's current accounts. Okay, it's current accounts. Harsha and Chaya. Harsha's answer balance, total नहीं है, balance transfer करना. 7250 और ये यानी टोटल आपका हो जाएगा 7950. Okay, and remaining your answers 3000 and all the answers. Okay, जो भी है 1000 है, 15,000, 2,000, 10,000, 300, and here liability side capital, general reserve 10,000, this 5,000 and all. Simple. Now what you will do? हो गया सब, कैपिटल हो गया, करंट अकाउंट हो गया. Do the total. Let's check कि टोटल आ रहा है. Okay, 72,250. This is your balance sheet. Okay, tally हो गया 72,250. Clear? Your sum is tallied.